Hello students, let's continue with the numericals of calorimetry part B. In the previous video we already completed from question number 1 to 4 and question number 10, 11. In this video I will do from question number 5 to 9. Make sure you have seen the previous video because the concepts of this exercise were explained in that video. Now, the fifth question. It says in an experiment, 17 grams of ice is used to bring down the temperature of 40 grams of water. So there is ice and water. We have 17 grams of ice and I have 40 grams of water. At 34 degrees Celsius, see, in an experiment, 17 grams of ice is used to bring down the temperature of 40 grams of water at 34 degrees Celsius. So water is at 34 degrees Celsius to its freezing temperature. Means ice is already at 0 degrees Celsius. Okay, so this water, the final temperature, the water is also bought at 0 degrees Celsius. Question में क्या दिया है? To bring down the temperature of water from 34 degrees Celsius to its freezing temperature. Freezing temperature means 0 degrees. Okay. So ice is already at 0 degrees, but it is 0 degree ice. Okay, and it is coming to the freezing temperature means this is 0 degree water. Water is getting its temperature reduced from 34 to 0 degrees. This is 0 degrees water only. Okay, and this ice which is in solid state is melting and taking away the heat. Here the heat is released, here the heat is absorbed. This is the final temperature. The specific heat capacity of water is 4.2. That means specific heat capacity of water means small c. It is 4.2 joules per gram Kelvin. We have to calculate the specific latent heat of ice. Means we have to calculate the value of ice. Here it is important to note that they have asked us in the question to find the value of L, but the value of L is fixed. You should know in the back of your mind what is the value of latent heat of ice. It is 336 joule per gram, or 336 into 10 raised to 3 joule per kg. दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू. सो आंसर भी जो आने वाला है वो यही आएगा. अगर आपने ग्राम में रखा है सब चीज़ों को तो यू विल गेट दिस एज द आंसर. यू ऑलरेडी नो द आंसर दैट दिस विल बी द आंसर. ओके, सो हियर हीट इज गेन्ड और हियर द हीट इज लॉस्ट. करेक्ट. ये इसकी टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है. ठीक है, तो जितना आइस जैसे जैसे ये आइस मेल्ट हो रहा है, दिस 0 डिग्री आइस इज बिकमिंग 0 डिग्री वाटर. इट इज़ एब्जॉर्बिंग हीट. ओके, और वो एब्जॉर्ब कहाँ से कर रहा है? यहाँ से, इस वाटर में से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. सो वाटर कूल होते जा रहा है. ओके, सो दैट मीन्स हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. Okay, this is M1, M2. Okay, now what is the heat gain here? How to find the formula of heat here? Heat means Q. Okay, so what is the formula when 0 degree ice becomes 0 degree water? ये change of state हो रहा है यहाँ पे. There is no change in temperature here. This is change of state. Change of state means it is M into L. Okay, equals, here there is a heat loss, there is change in temperature, so this is mc delta t. तो जितना हीट यहाँ पे गेन हुआ उतना ही यहाँ से रिलीज हुआ है. ओके, दैट इज वाई दे आर इक्वल. जितना यहाँ से आया उतना ही यहाँ से गया. ओके, नाउ व्हाट इज द मास ऑफ आइस? 17. L we don't know. Here the mass is 40. Specific heat capacity is 4.2 and the change in temperature is 34. 34 से 0 means 34 change in temperature. So L is
40 into 4.2 into 34 upon 17. So when you solve this, you will get the value as 336 joules per gram. This was question number 5. And they have said, state one important assumption made in the above calculation. So the important assumption is that there is no loss of energy. नो लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स जितनी एनर्जी यहाँ से लॉस्ट हुई है पूरी की पूरी यहाँ पे गेन हो गई है, बीच में कहीं लॉस नहीं हुई है. देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी. दिस इज द अजम्पशन मेड. Okay, next question number 6. Now the question number 6. Now this question number 6 is a little different. They have said find the result of mixing 10 grams of ice. So there is ice 10 grams at minus 10 degrees Celsius with water which is also 10 grams which is at 10 degrees Celsius. We are mixing them. Okay, and what is the result of mixing? That means, see, this ice the temperature of the ice will increase and it will become 0 degrees Celsius. So this is minus 10 degree ice, it will become 0 degree ice. Okay, and then this 0 degree ice can further melt and become 0 degree water. This is the process ice will follow. Okay, and what will water follow? Water 10 degree Celsius water will become 0 degree Celsius water. वाटर का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, आइस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 0 तक बढ़ेगा, फिर आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड इट विल बिकम वाटर. यहाँ से वाटर मेल्ट होगा, वाटर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है. ओके, एंड इट कैन गो फर्दर एंड कैन बिकम आइस. व्हाट दे आर आस्किंग इज दैट इतना वाटर और इतना आइस मिक्स किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कितना आइस मेल्ट होगा, क्या पूरा आइस 10 ग्राम्स यूज़ हो जाएगा इस वाटर को कम करने के लिए. सी, इस वाटर के टेम्परेचर को 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लाने के लिए कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी फॉर दिस वाटर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू कम टू 0 डिग्री सेल्सियस. दिस वाटर विल लूज हीट. ओके, तो ये जो हीट लॉस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये हीट लॉस्ट कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है. ठीक है, सी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो इट विल गेन सम हीट. ओके, यहाँ से यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, देन ऑल्सो इट विल गेन हीट. ओके, so let's calculate the values here. See, when ice will go from, let's say this is Q1, this is Q2 and this is Q3. मतलब आइस जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो कितनी हीट गेन की, दैट इज़ Q1. फिर आइस जब स्टेट चेंज करेगा कितनी हीट गेन की, दैट इज़ Q2. एंड आइस जब वाटर जब 10 डिग्री से 0 डिग्री पे आएगा तो कितनी हीट लूज़ की, दैट इज़ Q3. Okay, now Q1, what will Q1 be? Q1 will be, temperature is changing here. Okay, so formula will be mc delta T. Mass is 10. The specific value of C of ice, is 2.1. ठीक है, आइस का 2.1 होता है. वाटर की वैल्यू अगर देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज़ 4.2. ओके, तो यहाँ पे आइस का है, सो वी विल टेक 2.1. कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, -10 से 0, दैट मीन्स 10 डिग्रीज का चेंज है. ओके, सो कितनी हीट एनर्जी यहाँ पे गेन हुई, 210 गेन हो गई. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट Q3 फर्स्ट. ये Q3 जब वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा तो हाउ मच हीट एनर्जी विल इट लूज़, हीट लॉस्ट कितना होगा. So that is mc delta T. Mass is 10 grams. For water the specific heat capacity is 4.2 and temperature is again 10 degrees.
So I will get this value as 420 joules. मीन्स वाटर को मेल्ट होने के लिए, पूरा मेल्ट होने के लिए, सॉरी वाटर इज़ ऑलरेडी लिक्विड, पूरे वाटर को 10 डिग्री से 0 डिग्री वाटर बनने के लिए कितनी हीट एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी? 420 लूज़ कर ली तो ये 0 डिग्री वाटर बन जाएगा. ओके, अब आइस गेन करते जा रहा है. ठीक है, वाटर को लूज़ करना है, आइस को गेन करना है. तो आइस को यहाँ से यहाँ आने में कितनी हीट एनर्जी उसने गेन कर ली? इतने पार्ट में इट गेन्ड 210 जूल्स. ओके, तो अब ये जो बाकी का आइस हैव रीच, नाउ द आइस विच वॉज एट -10 डिग्री सेल्सियस हैज़ रीच 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड इट हैज़ गेन्ड 21 जूल्स ऑफ हीट. ओके, अब ये वाटर जो यहाँ से यहाँ पे आया है उसने कितनी हीट अवेलेबल की है? 420 लूज़ की है. आइस ने अभी तक 210 गेन कर ली है. तो इस 420 में से 210 गेन हो चुका है, आइस ने ले लिया है. तो अब कितना और लेना बाकी है? यहाँ से कितना लेना बाकी है अभी? 420 में से 210 ऑलरेडी गेन कर लिया आइस ने. तो इसमें से कितना बाकी है? हीट लॉस्ट 420 माइनस 210, दैट इज़ 210 जूल्स. तो यहाँ पे ये वाले पार्ट में सिर्फ 210 जूल्स, 210 जूल्स हीट एनर्जी ही यूज़ होगी, ही गेन होगी. सी, अगर आप Q2 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करो, Q2 इज़ चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज़ m इंटू एल. करेक्ट, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहाँ पे. सो मास इज़ 10 एंड L की वैल्यू होती है 336. सो यू विल गेट द आंसर एज 3360 जूल्स. 3360 जूल्स गेन करेगा. बट ये पॉसिबल ही नहीं है. आइस जब यहाँ से यहाँ पे जाता है तो इट विल गेन 3360 जूल्स टू चेंज इट्स स्टेट. बट इतना हीट अवेलेबल ही नहीं है यहाँ से. सी, अगर चेंज करना है, हीट को गेन करना है, तो कहीं से हीट आनी चाहिए ना. कोई हीट लॉस्ट करेगा तभी तो दूसरा गेन करेगा. बट यहाँ पे हमें वैल्यू आ रही है 3360 जूल्स, बट वो अवेलेबल ही नहीं है. यहाँ पे सिर्फ 420 अवेलेबल था, जिसमें से 210 तो यहीं पे गेन हो गया, एब्जॉर्ब हो गया यहीं पे 210. तो बचा कितना? सिर्फ 210 जूल्स बचा है, जो इस प्रोसेस में यूज़ होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ रॉन्ग. आई पर्पसली रोट इट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा ही नहीं. मतलब जो यहाँ पे आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है, वो पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बनेगा ही नहीं. ओके, बिकॉज उसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़े से हीट की ज़रूरत है. तो ये इतना सा हीट की ज़रूरत है. कितने हीट गेन करने की ज़रूरत है? सिर्फ 210 जूल्स. ओके, तो ये 210 जूल्स जो हीट गेन करने की ज़रूरत है, सी 210 joules of heat is absorbed when ice starts melting. मीन्स जब ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट हुआ तो 210 जूल्स हीट इसने ले लिया, तो काम ख़त्म हो गया. ठीक है, तो पूरा जो 10 ग्राम्स आइस था, हमारे पास कितना आइस था? 10 ग्राम्स आइस. तो वो पूरा 10 ग्राम्स आइस मेल्ट होगा ही नहीं, बिकॉज इतना हीट अवेलेबल ही नहीं है. सिर्फ 210 अवेलेबल है. तो 210 जूल्स अवेलेबल हीट से, सी व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ स्टेट? इट इज़ Q इज़ m इंटू एल. हमारे पास कितना अवेलेबल हीट है जो ये आइस गेन कर सकता है? ओनली 210 जूल्स. ओके, और इस 210 जूल्स हीट्स के L की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज़ 336. ओके, तो मतलब कितना मास, व्हाट मास ऑफ आइस विल मेल्ट हियर? फुल आइस विल नॉट मेल्ट, बिकॉज पूरा मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा, बिकॉज हीट अवेलेबल नहीं है. तो कितना आइस मेल्ट होगा 10 ग्राम्स में से, सो दैट 210 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन मेल्टिंग. ओके, सी पूरा अगर 10 ग्राम्स मेल्ट होता है तो इट विल टेक दिस मच जूल्स ऑफ हीट, बट इतना अवेलेबल ही नहीं है, तो पूरा मेल्ट होगा ही नहीं. कितना मेल्ट होगा? लेट्स फाइंड द मास ऑफ द आइस विच विल मेल्ट टू टेक 210 joules of heat. The value of L is 336. So when you divide this, you will get the value as 0.625 grams. मतलब 10 ग्राम्स में से सिर्फ 0.625 ग्राम्स आइस ही मेल्ट हुआ, क्योंकि इसके ही मेल्ट होने में इट एब्जॉर्ब 210 जूल्स ऑफ हीट. उसने एब्जॉर्ब कर लिया. तो जितना भी यहाँ पे रिलीज़ हुआ था हीट
420, वो 210 इसने कर लिया पूरा, और बाकी 210 जो बचा था वो थोड़े से आइस ने कर लिया, तो काम हो गया. नाउ बोथ हैज़ रीच द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री वाटर. तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा, 0 डिग्री वाटर होगा, ठीक है, और प्लस आइस के क्यूब्स वैसे ही पड़े होंगे, सिर्फ थोड़ा सा आइस, कितना, सिर्फ 0.625 आइस मेल्ट होगा, बाकी सारा आइस ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो मेल्ट ही नहीं होगा. क्यों नहीं मेल्ट होगा, बिकॉज उतनी हीट एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है उसको मेल्ट करने के लिए. ओके, सो योर द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी दैट 0.625 grams of ice will melt, okay, to bring down the temperature of water. The final temperature of mixture will be 0 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड स्टेट में होगा. I hope you have understood. You can even rewind the video and watch it again if necessary. Pause the video and copy it. Next, question number 7. The question says piece of ice of mass 40 grams, so there is ice mass 40 grams is added to 200 grams of water. Water is 200 grams at 50 degrees Celsius. Water is at 50 degrees Celsius. Calculate the final temperature. We have to calculate the final temperature of water when all the ice has melted. When all the ice has melted. सो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर वी डोंट नो. ओके, okay, now I have told you that we take the higher temperature as T1, higher mass as M1, lower temperature as T2 as this one. So अब ये ice जो है at 0 degree Celsius ice, this will melt and we will get the water which is there will get affected and the temperature of the water will reduce and it will come to some final temperature. हमें नहीं पता क्या final temperature है, तो सी होगा क्या, ये जो ice है 0 डिग्री पे, first this ice will melt. This is ice at 0 degree Celsius. It will become 0 degree Celsius water. Okay, और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के बाद जो टेम्परेचर है, सी 50 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है, इट विल कीप फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग. ओके, ये पूरा 50 डिग्री 0 डिग्री नहीं पहुंचेगा. ओके, बिकॉज उन्होंने बोला है कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल आइस हैज़ मेल्टेड. तो सारा का सारा आइस मेल्ट हो गया, ठीक है. इस आइस के मेल्ट होने की वजह से कुछ ना कुछ हीट उसने यहाँ से ले ली वाटर में से, ठीक है. सी वाटर के पास हीट थी, वाटर 50 डिग्री सेल्सियस था, एक कैन है, इसमें वाटर है, आपने इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, ठीक है. तो वाटर जो 50 डिग्री सेल्सियस पे था, अब उसका टेम्परेचर गिरते जाएगा, बरोबर, क्योंकि ये आइस हीट को एब्जॉर्ब करते जा रहा है, ठीक है. और आइस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो आइस खुद वाटर बनते जा रहा है धीरे धीरे, ओके, और सारे हीट को एब्जॉर्ब करते जा रहा है. तो प्रोसेस क्या है, आइस मेल्ट होते जा रहा है और वाटर का टेम्परेचर कम होते जा रहा है. सो किस फाइनल टेम्परेचर तक वाटर पहुंचा, ये हमें ढूंढना है. ओके, सो यहाँ से आइस ने जब मेल्ट हुआ तो हीट गेन की, ओके, और बाद में वो आइस जब वाटर बना उसके बाद भी वो हीट लेते गया वाटर के पास से. ओके, तो ये वाला जो साइड है ना, दिस साइड इज गेनिंग हीट एंड दिस साइड हियर इज लूजिंग हीट. आर यू गेटिंग? ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर कम कम होते जा रहा है, तो वो हीट रिलीज़ कर रहा है, और आइस जो है जो मेल्ट भी हो गया
और प्लस उसका टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है, बिकॉज जो हीट यहाँ से रिलीज़ हो रही है वो आइस को मिलते जा रही है। ओके, जो हीट यहाँ से रिलीज़ हो रही है वो इस आइस को मिलते जा रही है, तो आइस मेल्ट भी हो गया और प्लस उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया, तो फाइनली वो किसी टेम्परेचर पे सेटल हो जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड दिस टेम्परेचर। तो व्हाट आई विल डू, वी नो दैट हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। सो हीट गेन मतलब ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है यहाँ पे, 0 डिग्री आइस टू 0 डिग्री वाटर हुआ है। सो कितना हीट यूज़ होगा, हाउ टू कैलकुलेट, m इंटू एल। ओके, प्लस ये वाले पार्ट में 0 डिग्री वाटर का टेम्परेचर बढ़ के सम फाइनल डिग्री पे पहुँचा है। ये आइस जो वाटर बन गया उसका टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पे, सम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वी डोंट नो, बट हाउ टू कैलकुलेट द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हियर, बाय mc डेल्टा टी, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो mc डेल्टा टी इक्वल्स, यहाँ से वाटर ने कितना हीट एनर्जी रिलीज़ किया है वो कैसे निकालूँ, टेम्परेचर कम हो रहा है वाटर का, मीन्स दिस इज ऑल्सो mc डेल्टा टी। ओके, नाउ हियर द मास इज़ 40, आइस का मास 40 है और आइस के L की वैल्यू होती है 336, प्लस ये सेम आइस जो 40 डिग्री आइस था, 40 ग्राम्स आइस है, दैट मेल्ट करके वो वाटर बना है। तो वाटर भी कितना होगा, 40 ग्राम्स ही होगा। 40 ग्राम्स आइस मेल्ट होके 40 ग्राम्स वाटर बना है। सो हियर द मास विल बी 40। C मीन्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट इज़ वाटर हियर, तो कितना होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, 4.2। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 0 से लेके T डिग्री सेल्सियस तक, दिस इज़ T डिग्री सेल्सियस, 0 से T डिग्री सेल्सियस वाटर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है। तो T माइनस 0, चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर इज T माइनस 0 इक्वल्स, ये साइड में व्हाट इज़ द मास ऑफ वाटर, 200 ग्राम्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C फॉर वाटर, इट इज़ सेम 4.2, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 50 से T हुआ, 50 से कम होते 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 T हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 50 माइनस T। समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल फाइनल टेम्परेचर 28 था, तो 50 से 28 पहुंचा, तो कितना चेंज हुआ, 50 माइनस 28, 22 डिग्री चेंज हुआ, करेक्ट। वैसे ही 50 से लेके T तक पहुंचा है, मतलब इनका डिफरेंस क्या है, दैट विल कम हियर एज डेल्टा T, दैट इज 50 माइनस T। ओके, नाउ आई विल सॉल्व दिस। T माइनस 0 तो T ही होता है, ठीक है। दिस इज 168T इक्वल्स 200 इंटू 4.2 is 840 bracket 50 minus T. Open this bracket. So this is 840 into 50 is 42,000 minus 840T. Now this minus 840T, bring it on the left hand side. It will become 840T plus 168T equals this 13,440 will go on the right hand side. So when you solve this, approximately, if you solve it approximately, you will get the value as, समझो ये 1008 है ना, इसको 1000 समझो, so approximately you will get the value as 28.33 degree Celsius. This is the final temperature reached. समझ रहे हो? If you see the question once again, आइस 0 डिग्री से पे था, वो मेल्ट हुआ, 0 डिग्री वाटर बना, और फिर उसने और उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया और वो पहुंचा 28 डिग्रीज पे। तो इतना हीट आया कहाँ से, ये यहाँ से, जो ये 200 ग्राम्स वाटर था वो जब फ्रीज होने लगा, उसका टेम्परेचर कम होने लगा, तो उसने बहुत सारी हीट रिलीज़ की, जिस हीट के वजह से ये आइस मेल्ट भी हुआ और उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। ओके।
Next, question number 7 is done. Question number 8. Next, question number 8. Mark this question important because it is different in one sense. It says 250 grams of water at 30 degrees Celsius. So there is 250 grams of water at 30 degrees Celsius is contained in a copper vessel of mass 50 degree Celsius. तो एक कॉपर वेसल भी है हमारे पास जिसका मास है 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड. I'll repeat, calculate the mass of ice required to bring down the temperature of the vessel and its contents to 5 डिग्री सेल्सियस. वो क्या बोल रहे हैं कि आइस हम डाल रहे हैं. सी, एक कंटेनर है जो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है. इनसाइड द कंटेनर देयर इज वाटर. कंटेनर का टेम्परेचर एंड वाटर का टेम्परेचर, दे आर सेइंग in the beginning of the question they said 250 grams of water at 30 degree Celsius is contained in a copper vessel of mass 50 degree Celsius. मतलब जो पानी है यहाँ पे अंदर वाटर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस पे. ओके, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द कंटेनर, दिस कंटेनर, ये भी 30 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा. ओके, नहीं तो अगर ये 30 डिग्री सेल्सियस पे नहीं हुआ तो होगा क्या कि इनके बीच में ही हीट ट्रांसफ़र होगा, इनके बीच में हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा. ओके, बट दे हैव सेड दैट द वाटर एंड इट्स कंटेंट, मतलब ये जो कॉपर वेसल है और वाटर है, दे आर एट 30 डिग्री सेल्सियस इनिशियली. नाउ वी आर एडिंग सम आइस क्यूब्स हियर इनसाइड. ओके, एंड वी आर ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड इट्स ऑफ द कॉपर वेसल एंड इट्स कंटेंट्स, दैट इज़ वाटर, बोथ टू 5 डिग्री सेल्सियस. ये दोनों 30 डिग्री सेल्सियस पे थे. ओके, दोनों के कंटेंट्स को, दोनों को मतलब वेसल को और वाटर को, दोनों को फाइनल 5 डिग्री सेल्सियस पे लाया. ओके, इनका टेम्परेचर को कम करना मतलब इनके अंदर से हीट लेना, ठीक है. सो दिस इज हीट लॉस्ट, दिस पार्ट इज हीट लॉस्ट, दिस इज ऑल्सो हीट लॉस्ट. ओके, और ये हीट गेन कौन कर रहा है, कौन ये हीट को निकाल रहा है इसमें से, ये आइस निकाल रहा है. ओके, और फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्रीज है, मतलब ये आइस भी 5 डिग्रीज पे पहुंच रहा है. ओके, सो बट यहाँ पे एक स्टेज आएगा, क्या, सी, आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो फर्स्ट दिस 0 डिग्री सेल्सियस आइस विल बिकम 0 डिग्री वाटर. ओके, यहाँ पे एक ब्रेक आएगा. 0 डिग्री आइस हमेशा पहले 0 डिग्री वाटर बनता है और 0 डिग्री वाटर बनने के बाद वो आगे जाता है और 5 डिग्री वाटर बनेगा. समझ रहे हो, दिस इज़ द फाइनल टेम्परेचर. तो यहाँ से वाटर जो 30 डिग्रीज पे था वो हीट लूज़ करके 5 पे पहुँचा, कॉपर वेसल जो 30 पे था वो हीट लूज़ करके 5 पे पहुँचा, एंड जो आइस था 0 डिग्रीज पे वो पहले स्टेट चेंज हुआ, 0 डिग्री वाटर बना, एंड देन 0 डिग्री वाटर से वो 5 डिग्री वाटर बना. ठीक है, दिस इज़ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो इस प्रोसेस में क्या हुआ, दे बोथ लॉस्ट हीट एंड दिस आइस हियर इज गेनिंग हीट. Okay, so I'll write here that heat lost equals heat gained. So यहाँ पे heat loss हुआ है. Now heat lost, these both are losing heat. So इसका heat lost कैसे मिलेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे, that means mc delta t. इसका भी heat loss कैसे होगा, टेम्परेचर इज चेंजिंग. सो इसके लिए भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मीन्स mc delta t फॉर्मूला आएगा. ओके, यहाँ पे हीट गेन, आइस पहले 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बना, सो दिस इज चेंज ऑफ स्टेट. सो इस पार्ट के लिए फॉर्मूला आएगा m इंटू एल, एंड यहाँ पे 0 डिग्री वाटर बिकेम 5 डिग्री वाटर. सो दिस पार्ट के लिए टेम्परेचर इज चेंजिंग, मीन्स द फॉर्मूला विल बी mc डेल्टा टी. ओके, हियर द मास ऑफ दिस इज फॉर द वाटर. ठीक है, तो वाटर का मास कितना है, 250 ग्राम्स. ओके, सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वाटर की, वी आर डीलिंग इन ग्राम्स. ओके, आप क्वेश्चन में देखोगे इन द एंड दे हैव गिवन द वैल्यूज. दे हैव टोल्ड यू दैट स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज 336 इंटू 10 raised to 3,
फिर उन्होंने बोला है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मतलब स्मॉल सी ऑफ कॉपर इज़ 400 and specific heat capacity of water they have given as 4200. But if you see carefully these values are given in kg. ये भी वैल्यू kg में दी है ओके बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ग्राम्स में है तो हम ग्राम्स में ही वैल्यूज यूज़ करेंगे ओके तो यहाँ पे ये 336 इंटू 10⁻³ है ना तो इस 10⁻³ को हटा दो ये वाटर 4200 दिया है ना तो वी विल यूज़ ओनली 4.2 ग्राम में 4.2 होता है डिवाइड बाय 1000 हो जाता है एंड कॉपर ये 400 दिया है ना इसको भी डिवाइड बाय 1000 करो सो यू विल यूज़ द वैल्यू 0.4 ओके सो मास इज दिस मच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4.2 कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 30 से 5 मतलब 25 डिग्रीज चेंज हुआ ओके नेक्स्ट कॉपर के लिए ये हीट लॉस सो कॉपर का मास क्या है 50 कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर 0.4 ग्राम्स में 0.4 है हम ग्राम्स में यूज़ कर रहे हैं 0.4 देन टेम्परेचर कितना चेंज हुआ सेम 30 से 5 सो 25 इक्वल्स आइस का मास कितना है वी डोंट नो सो एम ही रहेगा एल की वैल्यू क्या होती है एल इज़ 336 so I'll write this as 336 m प्लस m नहीं पता c की वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है ना ये 0 डिग्री वाटर से 5 डिग्री वाटर बना है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज अगेन 4.2 एंड कितना टेम्परेचर चेंज हुआ यहाँ पे 0 से 5 पहुँचा है सो 5 डिग्रीज चेंज हुआ ओके नाउ लेट्स सॉल्व दिस 250 इंटू 4.2 into 25 this will give you 26,250 okay then 50 into 0.4 into 25 will give you 500 equals this is 336 m plus 4.5 into 5 होता है 21 m ठीक है now 26,250 plus 500 is 26,750 equals 336 m plus 21 m कितना होता है 357 m so 26750 upon 357 is equals to m when you divide this you will get the value as 74.9299 something like this when you round off ये जो 9299 को राउंड ऑफ करेंगे तो you will get 74.93 grams as the mass of ice write the statement the mass of ice required is 74.93 grams to bring down the temperature of water and copper vessel to 5 degrees Celsius. Copy it. Next, question number 9. Simple question. The question says 2 kg of ice melts. Okay, मतलब एक आइस है, ठीक है, जिसका वेट है 2 kg.
it melts when water at 100 degrees Celsius is poured in a hole drilled in the block of ice. Let's say you have a block of ice here. ऐसा ब्लॉक ऑफ आइस है, ठीक है, और इसके अंदर होल बनाया है और इसमें वाटर डाल दिया, वाटर पोर कर दिया, ठीक है, और उस वाटर पोर करने की वजह से ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया. ओके, आइस, पूरे आइस का मेल्ट होना, इसका मतलब क्या है? देखिए, पूरा आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस, आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, इसका मेल्ट हो जाना मीन्स इट बिकम्स 0 डिग्रीज वाटर. ओके, पूरा आइस मेल्ट हो गया. व्हेन दे से द आइस इज मेल्टेड, दैट मीन्स 0 डिग्री आइस बिकेम 0 डिग्री वाटर. ओके, और ये 100 ग्राम्स जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है, दिस ऑल्सो कम्स एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, बिकॉज पूरा मेल्ट हो चुका है. मेल्ट हो चुका है मतलब ये दे हैवंट टोल्ड अबाउट एनी फाइनल टेम्परेचर रीच्ड. नो, दे हैवंट टोल्ड अबाउट दैट, बिकॉज जो 0 डिग्री आइस था बस उसको मेल्ट करना है, उसको मेल्ट करना है बस, मतलब उसको 0 डिग्री आइस से सिर्फ 0 डिग्री वाटर लाना है. ओके, और ये करने में 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला कितना वाटर चाहिए? हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड? व्हाट इज द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ आइस टू 0 डिग्री वाटर? ओके, तो कितना यहाँ पे वाटर चाहिए हमें? ओके, दिस वाटर विच इज एट 100 डिग्री सेल्सियस will come at 0 degree will become 0 degree Celsius water, and it will lose a lot of heat, और वही हीट ये गेन करेगा आइस मेल्ट होने में. ठीक है, सो दिस इज हीट गेन and this is heat lost. So we know that heat gain equals heat loss. Okay, so heat gain मतलब यहाँ पे हीट गेन हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर. स्टेट चेंज मतलब m/L. ओके, एंड यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 100 डिग्री वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर इज बिकमिंग 0 डिग्री सेल्सियस वाटर. सो हियर दिस temperature is changing, so mc delta t. Now here see the weight is given, the mass is given in kgs, so we'll also keep everything in kg. यहाँ पे मास, आइस का मास है 2 kg. L की वैल्यू होती है 336, ग्राम्स में 336 होती है, kg में इट इज़ 336 raised to 10 raised to 3. Question also it is given, latent heat of ice is 336 into 10 raised to 3. So I will use that same value. ओके, बिकॉज मैं केजी में सम सॉल्व कर रहा हूँ, और बेटर भी है, हमें एक बार एक सम तो केजी में सॉल्व करना ही चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मास, वी डोंट नो द मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन केजी इट इज़ 4200. एंड हाउ मच इज़ द टेम्परेचर चेंजिंग? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर सीधा 0 डिग्री पे आ रहा है, मीन्स 100. सो ये 10 raised to 3 है, so यहाँ पे 3 zeros कैंसिल कर देते हैं. This 420 will come down, so 2 into 336 upon 420. When you solve this, you will get the mass as 1.6 kg. Means 1.6 kg mass of water will be required to melt this whole block of ice, which is 2 kg. In reality also, if you want to melt 2 kg of ice, and if you have water at 100 degrees Celsius, you will require 1.6 kg, means around 1.6 liters of water to melt this ice, assuming there is no loss of energy. With this, we have completed the exercise, all the numericals. Question number 10 and 11 were done in the previous video. Yes, question number 12 is left. Just a second, we'll do the question number 12 also. Pause the video and copy this. In the previous video, I had done till question number 10 and 11. 12 was left. So let's do the 12th question also. Now they are saying 200 grams of ice. So there is ice, 200 grams of ice at 0 degree Celsius
converts into water at 0 degree Celsius in 1 minute when heat is supplied to it. So ये जो 0 डिग्री आइस है 0 डिग्रीज पे, ये बन जाता है 0 डिग्रीज वाटर. कितने टाइम में? 1 मिनट में. ओके, टाइम दिया है ना, मतलब समझ जाओ. विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड? पावर. पावर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क अपॉन टाइम और Q अपॉन T. Q means heat energy. Work is also energy. Heat is also energy. Power is Q upon T. So टाइम दिया है ना यहाँ पे, तो मतलब पावर यूज़ होगा. ओके, नाउ मैं यहाँ पे हीट एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ. 0 डिग्री आइस इज बिकमिंग 0 डिग्री वाटर. ओके, एंड 200 grams of ice. So what will be the heat energy here? Heat energy will be m into L, because this is change of phase, change of state. Okay, mass 200, L is 336. So this answer will be 67200 joules. This is the heat energy. Okay, टाइम दिया है 1 मिनट. 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड्स. ओके, सो आई विल कैलकुलेट द पावर हियर. मैं पावर फाइंड करूँगा, बिकॉज दे आर सेइंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट. रेट मतलब पावर. सी पावर क्या है? हीट एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब कितनी हीट एनर्जी निकल रही है कितने टाइम में. सो इट इज़ गिविंग अस द रेट ऑफ हीट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन और रिलीज, एनी रेट. So power is Q upon T, means 67200 upon 60. You will get the power as 1120 watt. Okay, now let's see the second part of the question. They are saying in how much time will 200 grams of water at 0 degrees Celsius will change to 20 degree Celsius. वाटर ओनली. अब पूछ रहे हैं कि ये यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, हमें पावर मिल चुका है, ये पावर यहाँ पे भी यूज़ होगा टाइम फाइंड करने के लिए. ठीक है, बट पहले दिस 200 grams ऑफ वाटर इज बिकमिंग एट 0 डिग्री इज रीचिंग 20 डिग्रीज. तो हाउ मच हीट एनर्जी इज इट एब्जॉर्बिंग टू डू दिस? तो पहले मैं हीट कैलकुलेट कर सकता हूँ. दिस इज चेंज इन टेम्परेचर. सी, तो चेंज इन टेम्परेचर इज MC डेल्टा टी. टेम्परेचर चेंज हो रहा है, MC डेल्टा टी. सो मास इज 200. फॉर वाटर व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 4.2. एंड टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 20. अंडरस्टैंड? वाटर है 0 डिग्रीज पे, इट इज़ बिकमिंग वाटर एट 20 डिग्रीज. तो कितना हीट एनर्जी यूज़ हुआ? हीट इज़ MC डेल्टा टी. तो लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 4.2 into 200 into 20, you will get 16800 joules. यहाँ पे हीट एनर्जी यूज़ हुई है. ओके, अब कितना टाइम लगा पूछा इसके लिए. ओके, तो टाइम पूछा है मीन्स मैं पावर का फॉर्मूला यूज़ करूँगा Q अपॉन T. ओके, व्हाट इज़ द पावर? पावर मुझे मिला हुआ है ऑलरेडी 11200. 1120 इक्वल्स व्हाट इज़ द हीट एनर्जी? 16800 अपॉन टाइम. Now when you divide this, you will get the answer as 15 seconds. So 15 seconds लगेंगे ये होने के लिए. So पहले उन्होंने आइस को वाटर बनाया और हमें टाइम बताया, तो जिस टाइम से के हेल्प से हमने पावर फाइंड कर लिया. फिर सेकेंड केस में उन्होंने उसी वाटर को टेम्परेचर इंक्रीज़ किया उसका, और पूछा कितना टाइम लगेगा. तो जो पावर हमें मिला था उस पावर को हमने यूज़ किया यहाँ पे एंड टाइम फाइंड कर लिया. Okay, so this was the last question actually of the exercise. We end the lecture here. That's it for today. Thank you.